Namaskar. Om Alak Saiba. We are celebrating fourth centenary year of a very renowned saint of Kashmir, Mata Raghumati. With her blessings, we have initiated Urzu Dorkut series, wherein we talk about health and wellness. Today is our fourth session of Urzu Dorkut. Till now, we would like to thank our doctors who have taken out their time to be and share their views and experience with us. The doctors which had been with us was Dr. Paras Bhatt. He is an ortho surgeon and a sports surgeon. Dr. Vimal Dasi, urologist and a kidney transplant surgeon. Dr. Sudhir Adalti, he is a cardiologist and a vascular surgeon. This program has been started, and the aim of this program is that we provide proper information on the healthcare of all of us. Today, from past, we have an average viewership of 15,000 people who have been benefited by being part of this webcast. We request all of you to kindly tell your friends to come and watch us every Sunday at 11:30 a.m. So I will ask Amit ji to introduce Dr. Kak to the audience today. नमस्कार, उर्दू दोरकोट सानी स्टे हेल्दी स्टे फाइन इनिशिएटिव में आप सबका स्वागत। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मनीष सिंह काक, जो एक सीनियर कंसल्टेंट हैं कोलंबिया हॉस्पिटल गाजियाबाद के साथ। डॉक्टर मनीष विल टॉक अबाउट कॉमन लिवर प्रॉब्लम्स, प्रिवेंशन, कॉजेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। Dr. Manish is a highly qualified doctor in the Department of Gastroenterology. He did his MBBS from JJM Medical College, Davangere. He's an MD Gastroenterology from Government Medical College, Srinagar. And he did his DNB Gastroenterology from the prestigious Tata Memorial Hospital. He has an extensive and exceptional work experience in the field of gastroenterology and has worked with reputed hospitals like SAIT, GS Medical College, KEM Hospital at Mumbai. He also enjoys professional membership of American College of Gastroenterology. Dr. Sahab will start with his presentation. I request other participants who are there on this program to please switch off their videos. We are getting disturbances. Please, thank you very much. So thank you and namaskar everybody. Urzu Dorkot. And I bring greetings from Ghaziabad and Columbia Asia Hospital. So today we'll discuss. आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में. लिवर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन माना जाता है. So जो हम डाइजेशन हमारा होता है, जो हम खाना पीना खाते हैं, that digestive process starts right from once we start chewing. So it is very important for us that we have to chew our food well. जैसे हम चिविंग शुरू करते हैं, अंदर कुछ डाइजेस्टिव सिक्रीशन स्टार्ट होती हैं, जिसमें स्टमक में, ड्यूडेनम में, हमारे पैनक्रियाज वगैरह में कुछ चीजें रिलीज होती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे ये हमारा डाइजेशन आगे प्रोसेस बढ़ता है. सो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज आवर चिविंग, दैट्स आवर फूड पाइप, स्टमक, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब यूज होता है. एंड प्रॉब्लम किसी भी डाइजेस्टिव ऑर्गन में यदि रहेगी तो वी हैव सिम्टम्स. सो आउट ऑफ ऑल दिस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टुडे वी विल बी डिस्कसिंग more on liver. Today our focus discussion will be on liver related problems. So what is our liver? लिवर एक ऑर्गन है जो बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, और ये हमारी बॉडी में राइट साइड में प्रिडोमिनेंट, राइट जहाँ पे रिब खत्म होते हैं, रिब केज होती है, उसके नीचे रहता है, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाके ये मिड पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारा पेट का बीच का हिस्सा है, वहां पे हमारा लिवर होता है. सो दिस इज आवर लिवर व्हिच इज इन द राइट साइड ऑफ द बॉडी प्रिडोमिनेंटली. लिवर में अंदर कई सारे
ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं, कई सारे चीजें घूमती रहती हैं, नेटवर्क जैसे होता है, जैसे एक तारों का नेटवर्क होता है कंप्यूटर में या कहीं भी सिस्टम में, टेलीविजन में, इसी तरह हमारे अंदर भी एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, जो लिवर से निकलते हैं, लिवर में जाते हैं, कुछ गंदा खून लाते हैं, कुछ साफ खून बाहर निकलता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, लिवर में फिल्ट्रेशन होता है। तो लिवर हमारे बॉडी का एक, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गन है, राइट साइड में रहता है, एक फुटबॉल के जितना इसका साइज होता है। लिवर को यदि हम देखते हैं, ग्रॉस एनाटमी है, तो उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, जिसको राइट लोब, लेफ्ट लोब बोलते हैं, और इसके साथ एक गॉल ब्लैडर नाम का चीज भी चिपका रहता है, जो बाइल सिक्रीशन में हेल्प करता है, और इसमें काफी सारे वेन्स होती हैं। लिवर में आउट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उसमें से लिवर में एक खसूसियत है कि ये रीजनरेट हो सकता है, इट कैन रीजनरेट। अगर लिवर का कोई हिस्सा डैमेज होता है तो बॉडी कैन रीजनरेट, विच मीन्स जैसे किसी की उंगली में, किसी के पैर में अगर कुछ कट गया तो दैट इज नॉट समथिंग विच कैन रीजनरेट, बट लिवर हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट। दिस इज व्हाट नेचर, गॉड हैज केप्ट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, सो नेचर हैज केप्ट दिस रीजनरेशन। बट it is very important to understand regeneration एक healthy liver में हो सकता है, once liver is healthy। जब liver damage हो जाता है तो वो regeneration का power नहीं रहता उसमें। liver काम क्या करता है हमारे लिए? बॉडी में कम से कम 200 से ज्यादा काम हमारे लिए करता है, जिसमें न्यूट्रिशन, इसके लिए स्टोरेज बनता है, कुछ केमिकल को ब्रेक डाउन करता है, बाइल सिक्रीशन में प्रोटीन्स वगैरह बनाता है, कई सारे काम लिवर करता है, और दैट इज व्हाई ये हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो लिवर का थोड़ा हमने समझ लिया, मोटा मोटा क्या है, कहाँ पे रहता है, हमारे लिए क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो ये सब समझने के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लिवर की डे टू डे, जो हम हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट लिवर की बीमारी को लेके, उसमें 6 प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दीज 6। इन चीजों को छोड़ के और भी कुछ चीजें हैं जो लिवर को डैमेज करती हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, कम लोगों में होती हैं, कॉमन नहीं है। कॉमन कॉजेज जो लिवर की आज के दिन में हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या जो पेशेंट आते हैं, उसमें है सबसे ज्यादा कॉमन एक होता है जिसको फैटी लिवर बोलते हैं, मतलब लिवर में फैट आना। दूसरा, लिवर के कुछ वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई करके कुछ वायरसेस हैं जो लिवर को इन्फेक्शन करके उसको डैमेज करते हैं। एंड और एक इम्पोर्टेंट कारण है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो लिवर को प्रॉब्लम करती हैं। लिवर में डैमेज होने में कुछ स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम फैटी लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। फैटी लिवर मतलब, जैसे आप ये बीच का फोटो देखेंगे, ये रेडिश कलर या पिंकिश कलर लिवर है जो आपके स्क्रीन में आपके लेफ्ट में दिख रहा है, दैट इज अ हेल्दी लिवर विच इज फ्लैशी और रेडिश पिंकिश कलर है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। और जो मिडिल में आप देख रहे हैं बीच में, वो फैटी लिवर है। तो आप देख सकते हैं इसमें फैट येलो हो गया, ये लिवर में फैट आ गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। जब कभी आपने सुना होगा किसी में, रिलेटिव में या नेबर में या किसी के सुनने में पता चला जी इनको लिवर का सिरोसिस हो गया, तो लिवर सिरोसिस है जो आपके स्क्रीन में आपका थर्ड दिख रहा है, दिस इज सिरोसिस ऑफ लिवर। सो वी हैव अ हेल्दी लिवर, वी हैव अ फैटी लिवर एंड देन वी हैव सिरोसिस ऑफ लिवर। अब इसमें रिवर्सिबिलिटी, कई बार मरीज हमसे पूछता है डॉक्टर साहब ये लिवर डैमेज हो गया तो क्या ये नॉर्मल हो सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिवर में फैटी लिवर की अगर हम बात करें या अल्कोहलिक लिवर की भी बात करें, कुछ हद तक रिवर्सिबिलिटी होती है, विच मीन्स जब ये 10%, 5%, 15, 10% तक डैमेज है, सो आप देखेंगे इसमें इनिशियल रिवर्सिबल करके ग्रीन एरो दिखाया, मतलब अगर ये फैटी लिवर का शुरुआती डैमेज है और अगर हम उस पर एक्शन करते हैं, वो एक्शन क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। इफ वी एक्ट अपॉन इट देन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आपका लिवर वापस नॉर्मल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इसका स्टेज बढ़ता है, बीमारी लिवर की बढ़ती है, विच मीन्स हमने ध्यान नहीं दिया लिवर की तरफ या टेस्ट नहीं किया या पता नहीं था, तो लिवर एक ऐसे स्टेज में आता है जब वो इरिवर्सिबल होता है, जब मीन्स वो अब वापस नॉर्मल नहीं हो सकता, विच इज सिरोसिस और फैटी लिवर का एक एक्सट्रीम एंड, जिसको
नैश करके बोलते हैं, उसमें फिर लिवर में फाइब्रोसिस, स्कारिंग होती है, लिवर में जख्म बनते हैं और वो जख्म फिर रिवर्स नहीं होते। सो इफ समबडी आस्क्स मी कि डॉक्टर साहब क्या मेरा ये लिवर का प्रॉब्लम रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यस, कुछ हद तक रिवर्सिबल होता है और कुछ हद तक इरिवर्सिबल होता है, डिपेंड्स अपॉन लिवर में कितना डैमेज है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेल्दी लिवर है, जैसे मैंने कहा इसमें कोई बीमारी नहीं है। और अगर हम इसमें अंदर सेल देखेंगे, बहुत ही आर्किटेक्चर सेल्स का, जो जैसे एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पे एक आर्किटेक्ट ने ईंट रखी है, पत्थर रखा, वो वहीं पर है, सब अपनी जगह है, तो बिल्डिंग इज हेल्दी। बट अनदर थिंग इज फैटी लिवर। अब इसमें फैट के सेल आ गए। अब आप देखिए इसमें येलो करके जो सेल्स आ रही हैं, लिवर का आर्किटेक्चर चेंज हो गया। मतलब जो एक बिल्डिंग बनाई थी, इमारत बनाई थी आर्किटेक्ट ने या बिल्डर ने, उसमें दीमक आ गया, उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई जिन्होंने ईंट की जगह ले ली, तो ये गलत सेल लिवर में आ गए, which means it is a damaged liver now and it is going towards damage. So architecture, internal architecture of the liver gets changed, which means now this is a diseased liver. So on your left is a healthy liver and on your right on the screen is a fatty liver. So this is what is fatty liver. Again मैं फिर से बता रहा हूँ, लिवर के स्टेज होते हैं। लिवर को एक हेल्दी लिवर से, जो आपको फर्स्ट नंबर पे मैंने दिखाया है, उससे लेके फोर्थ स्टेज में, जिसमें सिरोसिस बोल रहे हैं, इसमें आने में 10 से 15 साल लगते हैं। लिवर का प्रॉब्लम बहुत स्लो होता है, बहुत ग्रेजुअल होता है, इसलिए आदमी को पता नहीं चलता, बिकॉज दिस इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल एंड देयर आर नॉट मच सिम्टम्स। इसमें बहुत ज्यादा लक्षण भी नहीं होते, बिकॉज ये प्रोसेस स्लो है। जैसे हमारा बॉडी वेट 100 kgs 110 kgs है और कई साल रहा, 10 साल 15 साल, कभी मरीज को या किसी भैया वेट कम करो, बोलते सब ठीक तो चल रहा है, खाना पीना ठीक है, सब बढ़िया है, डाइजेशन हो रहा है। उसका रीजन ये है कि लिवर तो आपका डैमेज हो रहा है, लेकिन पहला दूसरा स्टेज में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब ठीक चलेगा। फिर धीरे धीरे वो थर्ड स्टेज, जहां से मैंने कहा फाइब्रोसिस, लिवर में स्कारिंग होना शुरू हो गया, लिवर में जख्म बन गए, फाइब्रोसिस आना शुरू हो गया। जब ये फाइब्रोसिस टाइप आता है, फिर कुछ थोड़े लक्षण आएंगे। फाइनली जब लिवर में ये थोड़ी गांठें बन गई, फोर्थ स्टेज में लिवर सिकुड़ गया, लिवर श्रिंक्स इन साइज एंड देयर आर सम नोड्यूल्स, कुछ गांठें बनते हैं उसमें। उसकी फंक्शनिंग, जो 200 काम हमने बोला लिवर कर सकता है, वो 200 से 100 50 डिपेंड करता है। सिरोसिस में भी स्टेजेस होते हैं, अर्ली सिरोसिस, मिडिल सिरोसिस एंड लास्ट स्टेज ऑफ सिरोसिस। सो इफ वी टॉक अबाउट लास्ट स्टेज ऑफ सिरोसिस, उसमें फिर काफी सारे दिक्कतें होती हैं, फिर सिम्टम आते हैं। सिम्टम मतलब पेशेंट को जॉन्डिस आता है, भूख खत्म हो जाती है, वजन गिर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, कभी खून की उल्टी आना, काली लैट्रिन होना, जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लैक मोशन बोलते हैं, ये सब चीजें होती हैं इन केस लिवर फोर्थ स्टेज में पहुंचे। सो वन फर्स्ट स्टेज टू फोर्थ स्टेज टेक्स एट लीस्ट 10 to 15 years. It's a gradual process. ये मैंने एक स्लाइड दिखाया है आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए इंटरनल आर्किटेक्चर का। ये नॉर्मल लिवर है, ये बीच में फैटी लिवर आ गया, इसमें नॉर्मल सेल चेंज हो गया। अब आप थर्ड स्टेज देखिए, जिसको नैश बोलते हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। जो नॉर्मल में जो ईंट पत्थर और जब जो आर्किटेक्ट, जो गॉड ने, जो बिल्डर ने बनाया था, वो बिल्कुल चेंज हो गया है, वो आर्किटेक्चर अब नैश में नहीं रहा। एंड फाइनली वी हैव दिस एडवांस सिरोसिस, जिसमें ये ब्लू कलर करके जो कुछ स्कारिंग है ये बन जाता है। सो दिस इज व्हाट इज अ सिरोटिक लिवर, और ये नॉर्मल लिवर है और ये फैटी लिवर है। ये दिखाना आपको जरूरी था, क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है, कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं यार फैटी लिवर तो सबको है, कुछ नहीं करना है। आप अल्ट्रासाउंड घर में फैमिली में 5 में से 4 लोगों को करते हैं, 4 का फैटी लिवर है, बोलते यार ये तो सबका है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग, बट डिपेंड्स अपॉन कौन सा लेवल है, स्टेज, जैसे मैंने बताया। हो सकता है आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, बट यू नीड टू टेक केयर। ऐसा नहीं कि आपको मेडिसिन लेना है, but you have to be aware about it and you have to take care. So that is the idea of this. पेट में पानी भरना, कई बार जब लिवर सिरोसिस में चला जाता है, लास्ट स्टेज में चला जाता है, तो मरीज सीधे हमारे पास ये प्रॉब्लम लेके आता है कि डॉक्टर साहब मेरा 1 महीने से 1.5 महीने से अचानक पेट बढ़ गया। जैसे आप देखेंगे इस फोटो में, ऊपर की बॉडी बिल्कुल खत्म हो गई है, मसल खत्म हो गए हैं, बस पेट रह गया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन एंड स्टेज ऑफ लिवर, जब लिवर में एसाइटिस बोलते हैं इसको, पेट में पानी भरना। कई बार मरीज 15 साल उनको आइडिया कुछ नहीं रहता है, वो अल्कोहल पीते रहते हैं, या किसी को वायरल इन्फेक्शन रहता है, हेपेटाइटिस बी या सी,
या पेशेंट को फैटी लिवर एडवांस होता है, फाइनली पेशेंट कम्स विद दिस व्हिच मींस पेट फूल गया, जॉन्डिस, पानी भर गया, ये करके आता है। यदि अब आप फैटी लिवर पे जाएं, ये तो लिवर का कॉम्प्लिकेशन क्या है वो मैंने बताया, अगर लिवर डैमेज होता है तो। फिर फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो फैटी लिवर एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ओबेसिटी, बॉडी वेट के साथ और खाने पीने के साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। आप देखेंगे इंडिया का परसेंटेज भी अच्छा खासा है, मोर देन 30%। मतलब अगर 100 लोग सड़क पे घूम रहे हैं, एटलीस्ट 30 पीपल हैव फैटी लिवर, एंड दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। हर एक कंट्री में ये प्रॉब्लम है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, बट इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। अगेन आप इसमें देखिए, पूरे विश्व भर में ये फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। कहीं पे 40% है, कहीं पे 30% है, कहीं 10% है, बट इट्स एवरीवेयर। एक स्टडी हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जैसे हम पहले बोलते थे विलेजेस में, रूरल एरिया में खाना पीना अच्छा रहता है, लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे फैटी लिवर और ये प्रॉब्लम कम है। लेकिन विलेजेस में भी, रूरल एरिया में भी ये आ गया है। रीजन बीइंग लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जंक फूड बढ़ रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है, तो फैटी लिवर अब अर्बन में तो था ही, रूरल में भी अब आ रहा है। सो अगेन इसका रीजन क्या है? रीजन इज एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन ऑफ मैन क्या है? पहले आदमी जंगल में घूमता था, सुबह शाम भटकता रहता था, विच मीन्स लॉट ऑफ एक्सरसाइज। खाना लिमिट में था, ऐसा नहीं है कि आपने फ्रिज खोला, मिठाई भी रखी है, वहां गुलाब जामुन भी रखा है, सब कुछ है, बटर भी है, भूख लगी तो खाइए, ऐसा पहले नहीं था। जो एवोल्यूशन था, जो मैनकाइंड का एवोल्यूशन हुआ, इंसान खाने के लिए सर्च करता था, हंटिंग करता था, घूमता रहता था। तो ग्रेजुअली, सो दैट इज द टाइम व्हेन ओबेसिटी नहीं थी, तब बॉडी वेट किसी का ज्यादा नहीं था। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ता रहा मतलब खाना पीना बढ़ा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बढ़ा, जंक फूड, रेडी टू ईट फूड, पिज्जा, भूख लग रही है तो बर्गर ऑर्डर कीजिए, पिज्जा ऑर्डर कीजिए, आधे घंटे में डोमिनोज का he promises 20 minutes free, otherwise all that ad and all. So that's what happens is that once you have easy food, fast food available, and then you start eating recklessly. आप कभी भी फ्रिज खोल के खाना खाएंगे। And finally this mobile phone से क्या हुआ? आपको बाहर न खाना खाने तो बाहर जाना नहीं है, सब्जी लेने बाहर जाना नहीं है, बैंकिंग भी मोबाइल पे है, ओला भी मोबाइल पे है, उबर भी मोबाइल पे है, तो उठना ही नहीं है। पहले तो चलो लैंडलाइन था, कम से कम फोन उठाने के लिए आपको उठना पड़ता था, अब तो उसके लिए भी नहीं। So this is problem of evolution. Evolution is what has led to our fatty liver disease. So dietary scenario has changed, cooking practices have changed, fast food, oily food, जो खाना जल्दी बने, इसको उबालना ना पड़े, कुक ना करना पड़े, 2 minutes नूडल्स, मैगी 2 मिनट में तैयार, कुकिंग प्रैक्टिस चेंज हो गई। इकोनॉमिक ट्रांजिशन, अगेन यस, इकोनॉमी बढ़ गई, पैसा थोड़ा आ गया, सो यू कैन अफोर्ड टू ईट ऑल काइंड ऑफ फूड, जंक फूड, पेस्ट्री खाना है, कुछ खाना है, तो सेडेंटरी रूटीन लाइफस्टाइल में कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर में है, लैपटॉप पे बैठना है दिन भर, ऐसा घूमना नहीं है, बाहर जाके बस पकड़नी, ट्रेन पकड़नी, ये सब का कम हो गया है। सो लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, स्वीटेंड फूड, मिठाइयाँ, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये डाइटरी सिनेरियो चेंज होने के कारण फैटी लिवर का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। एक और चीज आपको ध्यान में रख रही है, अगर किसी का बॉडी वेट ज्यादा है, ओबेसिटी, अगर ओबीस है कोई तो फैटी लिवर तो होगा ही होगा। दूसरा है, अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है, 60% ऑफ डायबिटिक्स, अगर किसी को डायबिटीज है तो 50 to 60% ऑफ देम हैव अ फैटी लिवर डिजीज। ट्राइग्लिसराइड यदि ज्यादा है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके कुछ आपका बॉडी में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो आपको फैटी लिवर आने का रिस्क ज्यादा होता है। जैसे मैंने कहा, फैटी लिवर के कारण क्या है? वेट ज्यादा होना, शुगर, डायबिटीज है, आपका ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल सब बढ़ा हुआ है, किसी किसी को जेनेटिक में भी ऐसे कुछ रहते हैं, या कभी कोई ऐसा मेडिकेशन है जो बाय चांस इफेक्ट दे रहा है, तो ये सब भी फैटी लिवर के रीजंस हैं। अब फैटी लिवर में क्या करना चाहिए हमें?
सो व्हाट नेक्स्ट, अब पता चल गया फैटी लिवर है, जैसे आपने अल्ट्रासाउंड किया या कुछ टेस्ट किए, या आपका वैसे इनकेस बॉडी वेट ज्यादा है तो आप समझ लीजिए फैटी लिवर आपको है ही है, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो फैटी लिवर 50 to 60% चांस आपको है ही है, इवन विदाउट टेस्टिंग। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, कैलोरीज मतलब ऐसा खाना खाइए जिसमें एनर्जी, कैलोरीज कम हो। डाइट का कंपोजिशन चेंज करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना है, घूमना है और साइकिलिंग करनी है, या घर में आप कुछ कुछ काम कर सकते हैं। आई विल कम टू दैट आफ्टर सम टाइम। एंड बिहेवियरल काउंसलिंग, बिहेवियर मतलब कभी भूख लगी उठ के खा लिया, फ्रिज का खाना उठ के खा लिया, रात को नींद, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे बताते हैं डॉक्टर साहब रात को 2 बजे नींद खुलती है तो हम सीधे फ्रिज पे जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर खाना है, उसके बगैर नींद नहीं आती। सो दिस इज अ बिहेवियर। ऐसा थोड़ी रात को भूख लगती है, कोई रात को थोड़ी खाता है, बट दिस इज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये ऐसा बिहेवियर हो गया। सो इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। एंड इम्प्रूव्ड स्लीप, नींद भी इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, स्लीप जरूरी है। सो दिस इज बेसिकली कहने का मतलब ये है हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत है। तो फूड पिरामिड एक बताया गया है कि हमारे खाने में डे टू डे क्या होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए। तो एक पिरामिड को आप ऐसे समझ लीजिए, नीचे जो दिखाया गया है वो आप लिटरली खा सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, यू कैन टेक दैट एडिकेटली। लिबरल नंबर 2 पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह। सो दिस नीचे के जो 2 लेवल हैं उनको आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मॉडरेट में फिर ऑयल, रेड मीट और ये सब, और बहुत ही कम इज देन आइसक्रीम्स एंड ऑल दैट, पिज्जाज एंड समोसाज एंड पकौड़ाज, ये बहुत कम होना चाहिए। सो दिस इज आपका ऐसा फूड पिरामिड कैसा होना चाहिए यदि आपको फैटी लिवर है। इनकेस फैटी लिवर नहीं भी है, स्टिल टू मेंटेन योर हेल्थ, दिस इज व्हाट अ फूड पिरामिड हैज टू बी। और इसमें ऐड करना है रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। बिना हमेशा 24 घंटे बैठ के या बेड पे लेट के नहीं होगा। अगेन बैलेंस डाइट है, सीरियल्स, मिलेट्स, ये सब आपको ज्यादा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये ज्यादा, मिल्क भी बहुत ज्यादा नहीं, बट यू कैन टेक स्किम मिल्क लेना चाहिए, पल्सेस वगैरह लेने चाहिए, और फैट, ऑयल, शुगर, मीठा ये बिल्कुल कम। दिस इज व्हाट अ बैलेंस हेल्दी डाइट हैज टू बी। खाने में हमारा 60% to 50% कार्बोहाइड्रेट से खाना आना चाहिए। ये आप कभी डाइटिशियन से, यू कैन एज पर योर बॉडी वेट, इनकेस आपको लगता है तो यू कैन डिस्कस विद डाइटिशियन, जो आपको एक प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं कि आपको दिन में, सुबह, शाम में, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। सो फैट्स है पूरी ग्रॉसली, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 10 to 15% प्रोटीन्स, इट्स बॉडी बिल्डिंग। देन फैट्स हैव टू बी 30% to 20% एंड 60 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एनर्जी गिविंग फूड्स माने गए हैं। सो वी हैव सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रूट्स आते हैं, हनी आता है, जूसेस, जैम्स, सॉफ्ट ड्रिंक, ये कार्बोहाइड्रेट आपको खाने में कम करना है। टेबल शुगर, जो हम शुगर चाय में डालते हैं, ये कम करना है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस जो मैंने दिखाया था, एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब आपको बढ़ाना है। सो कार्बोहाइड्रेट तो दोनों है, हनी भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, और जो सीरियल्स, मिलेट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं। जूसेस वगैरह जो आते हैं, जो रियल के जूसेस एंड ऑल दैट, दिस यू हैव टू डिक्रीज, दिस इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने में बढ़ाना है। शुगर का कंजम्पशन बहुत कम करना चाहिए। अभी वेस्ट में, यूएस वगैरह में जो फैटी लिवर का एक एपिडेमिक है, दैट इज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ लॉट ऑफ शुगरी फूड्स। फ्रक्टोज सिरप जो बोलते हैं, कॉर्न सिरप, उससे जितना भी जो मीठा वहां पे है उसमें वो कॉर्न सिरप यूज किया जाता है, एंड दैट इज प्रोसेस्ड फूड्स, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह, स्वीट्स में ये सब डलता है। सो शुगर कंजम्पशन हैज टू बी लिमिटेड। एंड फाइबर यू हैव टू इंक्रीज इन डाइट। फाइबर में भी वेजिटेबल और फ्रूट्स और सलाड्स वगैरह, इसको डाइट में बढ़ाना है, एंड दिस बिकम्स अ बैलेंस्ड डाइट। अब दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या करनी चाहिए और हाउ डज इट हेल्प अस। फिजिकल एक्टिविटी में कुछ चीजें हैं जो डेली है, इसमें भी एक पिरामिड है। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको डेली यूज करनी है, जो डेली करनी है, और कुछ चीजें हैं जो बहुत लिमिटेड है। डेली में
जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लोग बोलते जी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, तो कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? बट यू कैन इंक्रीज योर डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैनुअल हाउस कीपिंग एक्टिविटी, डस्टिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, अरेंजिंग थिंग्स, प्लांट्स को वाटर करना, दिस इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। इससे भी आपका बॉडी वेट और फैटी लेवल ठीक हो सकता है। एलिवेटर, लिफ्ट को अवॉइड कीजिए। अगर आप थर्ड फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, या यदि आपके पास इफ यू फील यू हैव द एनर्जी, आई मीन आप ज़्यादा एल्डरली नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, या कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, या हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो एलिवेटर को छोड़ के स्टेयर्स को यूज कीजिए। थोड़ा डिस्टेंस के लिए ऑटो रिक्शा वगैरह अवॉइड कीजिए। थोड़ा मार्केट पास में है तो यू कैन गो वॉकिंग। रिमोट कंट्रोल, जैसे मैंने कहा फोन उठाने के लिए, इसके लिए ये सब रिमोट कंट्रोल का भी यू हैव टू डिक्रीज। दिस इज डेली, ये आप डेली कर सकते हैं। 5 to 6 days a week, एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज चलना, 3 से 5 किलोमीटर चल सकते हैं। थोड़ा साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टेयर्स चल सकते हैं। ट्रेडमिल आपके पास है, अगर इनके जिम फैसिलिटी है। उसके बाद फुटबॉल, स्विमिंग वगैरह, दिस यू कैन इंक्रीज। एंड जो बहुत मिनिमम है वो है कंप्यूटर गेम खेलना और टीवी बैठ के देखना। दिस हैज टू बी मिनिमल, बिकॉज इससे आपको फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है और नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा। सो दिस यू हैव टू अवॉइड। अब देखिए, अगर आप क्लीनिंग, मॉपिंग, सफाई कर रहे हैं तो 1 घंटे में 210 कैलोरीज आपके बर्न होते हैं। इफ यू डू गार्डनिंग तो 300 कैलोरी। आपने ट्रेडमिल भी नहीं किया, साइकिल नहीं चलाया, रनिंग नहीं की, बस गार्डनिंग की, तो यू कैन कंज्यूम योर कैलोरीज। टीवी देखने में आपको सबसे कम कैलोरी लगते हैं, 80 कैलोरीज। दिस मीन 0, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर आप साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, किस स्पीड से रनिंग करेंगे, दैट डिपेंड्स आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आप डांसिंग, वॉशिंग, वॉलीबॉल, टेनिस एक्टिविटी, जो भी गेम, दिस इज हाउ एक चार्ट है। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो केवल 50 कैलोरीज कंज्यूम हो रही है, और बैठ रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो 80 कैलोरीज, 86 कैलोरीज। तो इस चार्ट को दिमाग में रखिए। इफ यू आर रियली सीरियस इन डिक्रीजिंग योर बॉडी वेट, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। एक और सवाल हमारे से कई बार पूछा जाता है, जो एक कॉमन इंटरेस्ट की चीज है, कि हमें पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ऑयल क्या करना है, ऑयल यूज करना है। द बेस्ट तो है ऑयल बिल्कुल कम रखिए, मिनिमल रखिए। बिल्कुल ऑयल कंज्यूम नहीं करेंगे, बेस्ट वही है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जीरो ऑयल कर सकते हैं, जीरो ऑयल पे रहें। तो ऑयल को परचेज करने से पहले आपको क्या देखना होता है, यू हैव टू सी इज इट सैचुरेटेड और इज इट अनसैचुरेटेड। कौन सा ऑयल है ये जो आप खरीद रहे हैं, इसमें ट्रांस फैट कितना है। अनसैचुरेटेड भी 2 प्रकार का होता है, मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। फिर आपको देखना है कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कितना है ऑयल में, स्मोकिंग पॉइंट क्या है, और रिफाइंड है या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। तो रिफाइंड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में यदि हम देखें, रिफाइनिंग जो हम ऑयल की जाती है, ऑल्दो मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, दिस इज अ केमिकल इंजीनियरिंग, बट दिस इज फॉर पेशेंट बेनिफिट, व्हाटएवर आई हैव गेन फ्रॉम माय रीडिंग एंड एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल उसको क्या करता है, उसको कलर और फ्लेवर बहुत बढ़िया देता है। लाइट कलर का ऑयल हो जाता है, उससे वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और फ्राइंग वगैरह में उसका यूज आराम से हो सकता है। रिफाइनिंग में क्या होता है, कुछ सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, फिर ब्लीच किया जाता है, और डी ऑडोराइज करके हाइड्रोजनेट करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं। लेकिन जब हम रिफाइनिंग करते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो वायबल न्यूट्रिशनल चीजें हैं, टोकोफेरोल, स्टेरॉल्स, ये उसमें से निकल जाते हैं। और अगर उसमें हम उसको हाइड्रोजनेट करते हैं, जैसे वनस्पति बनाते हैं ऑयल का, तो उसमें ट्रांस फैट्स ज्यादा बन जाते हैं, जिससे हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो कुकिंग ऑयल में क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट बहुत कम होना चाहिए, लेस देन 10%। ट्रांस फैट 0 होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट की कंटेंट उसमें होनी चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। मोनो अनसैचुरेटेड हो और पॉली अनसैचुरेटेड हो, और मोनो पॉली का 4:1 रेशो होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग पॉइंट चेक करना है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो बेटर रहता है एज पर कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल। सो यू हैव टू चेक जो आप ऑयल खरीद रहे हैं उसमें फैट सैचुरेटेड कितना है, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड कितना है। सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, अगेन आई रिपीटिंग, ट्रांस फैट बिल्कुल 0, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम, एंड इट हैज टू बी अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो अब हम इसमें ज्यादा नहीं जा सकते, बिकॉज this is not our topic of discussion today, but again it was important, so
ऑयल के बारे में जो एक लास्ट 1-2 स्लाइड में बताऊंगा। ऑयल कौन कौन सा अवेलेबल है? सनफ्लावर ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन है, ऑलिव है, कैनोला है और राइस ब्रान ऑयल है, और लास्ट में घी। इसमें जो बेस्ट माना जाता है दैट इज ऑलिव ऑयल, बिकॉज इसमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, लूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स करके कुछ है। सेकंड बेस्ट इज कैनोला ऑयल, इसमें भी सैचुरेटेड फैट कम है, मूफा एंड ओमेगा 3 है। थर्ड बेस्ट इज राइस ब्रान, जिसमें ऑरिजिनॉल करके कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं। However, sunflower oil is also good. कोकोनट ऑयल में थोड़ा इशू ये है कि उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो उसको आपको ध्यान से लेना पड़ेगा। ग्राउंडनट ऑयल इज ऑल्सो ओके, इसमें मूफा पीफा रहता है। मस्टर्ड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए एंड घी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अगेन सोयाबीन ऑयल भी कर सकते हैं। So this is grossly about what oil you have to use. So this was our discussion till now on fatty liver. जैसे मैंने कहा था, fatty liver का नॉर्मल क्या है, डैमेज लिवर से क्या प्रॉब्लम होती है, एंड फैटी लिवर क्या चीज़ है, why it happens, what we can do to prevent it and how. I am not going into medication or tests because that is more of a medical related issue. उससे आप confuse हो जाओगे. This is more of a health related talk. So now another important is viral hepatitis. वायरस से जो लिवर डैमेज होता है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस मतलब लिवर का स्वेलिंग, लिवर में इन्फेक्शन और लिवर में डैमेज होना। वायरल हेपेटाइटिस 4-5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E, और कुछ जैसे मैंने कहा और भी हैं जिनको नॉन वायरल बोलते हैं, जिसमें ऑटो इम्यून वगैरह करके अल्कोहल करके है। ये वायरस कैसे दिखते हैं? जैसे हम सब ने कोरोना वायरस वगैरह देखा है, ये भी एक वायरस है। A, D और E इनका अपना स्ट्रक्चर है। हेपेटाइटिस A हमारी बॉडी में कैसे आता है? कंटामिनेटेड वाटर से। तो हेपेटाइटिस A और E ध्यान में रखना है, ये फूड बॉर्न है। अगर हमने सड़क पे या कहीं पे ठेले पे कंटामिनेटेड खाना खाया या पानी पिया तो वायरल हेपेटाइटिस A और E होता है। हेपेटाइटिस B और C हमारी बॉडी में आता है ब्लड बॉर्न, मतलब वो इंजेक्शन से, सुई से, निडल से आता है। सो AE इज अ फूड बॉर्न एंड B and C इज अ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। इसमें लक्षण क्या होते हैं? जॉन्डिस आता है, पीलिया आता है, और यूरिन वगैरह डार्क हो जाता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है। हेपेटाइटिस A और E से बचने के लिए क्या तरीका है? जैसे आजकल हम कोरोना में जो यूज कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना, गंदा खाना नहीं, सफाई से और हाइजेनिक खाना। हमेशा जो भी हम खाना खाएं कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। हेपेटाइटिस A और E से मतलब साफ खाना, सही तरीके से खाना, जो आजकल कोरोना में हम यूज कर रहे हैं मोटा मोटा, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हेपेटाइटिस B और C जैसे मैंने कहा, ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। ये हमारी बॉडी में सुई से, इंजेक्शन से, नीडल से आते हैं। जैसे HIV जैसे बॉडी में आता है, उसी तरीके से हेपेटाइटिस B और C आता है। और कभी टैटूइंग, एक्यूपंक्चर, जैसे कभी जहाँ भी नीडल आपने नाम लिखा, अपना ओम लिखा, टैटूइंग की। कभी आप नाई के पास शेव बनाने गए, वही रेजर अगर सब पे यूज होता है, एक पर्सन को जिसको हेपेटाइटिस B या C है, उस पे वो रेजर यूज हुआ, उस पे कट लगा और ब्लड लग गया, नाई ने वही रेजर दोबारा यूज किया दूसरे आदमी पे, उस पे भी कट लग गया, तो वो ब्लड एक से दूसरे में चला गया, जो कि अनजाने में हुआ, आपको कुछ आइडिया नहीं है। So it comes from one person to another person, जहाँ पे ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है। इसमें भी लक्षण शुरू में फैटी लिवर की तरह ज्यादा नहीं होते हैं, बट ग्रेजुअली लिवर में 10 to 15 ईयर्स लगते हैं धीरे धीरे डैमेज होने में, और लास्ट में वही सिरोसिस टाइप की दिक्कत आती है, जब भूख कम होना, बुखार टाइप, उल्टी टाइप, दर्द, जॉन्डिस वगैरह ये सब होना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस B एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरी विश्व भर में इसके कंट्रोल के लिए काम हो रहा है। हमारी कंट्री में भी हो रहा है, लाखों करोड़ों मरीज ऑल ओवर वर्ल्ड इन्फेक्टेड है। हेपेटाइटिस B हमारे देश में भी प्रेवलेंट है और काफी मात्रा में है। हेपेटाइटिस B यदि किसी को हो गया तो वही सिचुएशन है, धीरे धीरे पहले इन्फेक्शन रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर सिरोसिस होगा, और लास्ट में लिवर कैंसर। 15 to 20 ईयर्स टाइम लगता है। कभी बार मरीज को पता नहीं रहता है कि उनको वायरस है और बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, क्योंकि जब तक लिवर काफी हद तक डैमेज नहीं होता, कुछ लक्षण इसमें नहीं आते।
एंड 1% और आदमी को लगता है कि सब ठीक चल रहा है। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए बेस्ट है वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है जो सबको लगाना चाहिए। पिछले 10-15 साल से वैक्सीन का यूज बाय बर्थ दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों का जन्म 15-20 साल से पहले हुआ है तब वैक्सीन नहीं था, तो ऐसे सब लोगों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना चाहिए, जिसके 3 डोज होते हैं, 0, 1 और 3, और उससे आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आ जाएगा। और ब्लड जब भी चढ़ाते हैं, कई लोगों को आज से 15-20 साल पहले जब ब्लड चढ़ा है उसमें हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग नहीं होता था, तो कई लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हेपेटाइटिस बी आ चुका है। अब फिलहाल राइट नाउ अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, इस सब का टेस्टिंग होता है और वैक्सीन लगाने की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी भी लीवर में, जैसे इसमें मैंने दिखाया है, धीरे धीरे लीवर डैमेज होता है, फिर ये बीच में सिरोसिस होना और लास्ट में लीवर में कैंसर की गांठ बन जाती है, जिसको लीवर कैंसर बोलते हैं या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो बहुत ज़्यादा पर्सनल कांटेक्ट अवॉइड करना है। पर्सनल आइटम्स, रेजर्स, टूथ ब्रशेस वगैरह, ये सब यू डोंट हैव टू शेयर। नीडल्स वगैरह ये सब नहीं शेयर करने चाहिए। हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस बी की तरह एक प्रॉब्लम है, उसी तरीके से फैलता है, लिवर में वैसे ही डैमेज करता है, इंजेक्शन से, सुई से आता है, और इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसके लिए टेस्ट करना पड़ता है, और इन केस अगर हेपेटाइटिस सी है तो वी हैव टू ट्रीट। सो कमिंग टू लास्ट एस्पेक्ट विच इज अल्कोहलिक लिवर डिजीज, बहुत कॉमन है ये हमारी कंट्री में भी और वर्ल्ड वाइड भी। यदि कोई अल्कोहल पीता है तो क्या होता है, लिवर में शुरू में अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, उसके बाद बीच में जो है फाइब्रोसिस, स्कारिंग होती है, और लास्ट में सिरोसिस ऑफ लिवर। तो इनिशियली जो 2 स्टेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आते हैं, इसलिए पेशेंट को या आदमी को लगता है कि अल्कोहल पीने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो हाजमा उनका ठीक रहता है, खाना पीना ठीक है, भूख लग रही है, वो रोज़ अल्कोहल पीते हैं और बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एंड इफ यू टेल समबडी टू स्टॉप तो उनको लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब ठीक चल रहा है, बट बॉडी में पीछे डैमेज हो रहा होता है जो फाइनली सिरोसिस। और जब आपका सिरोसिस हो गया फिर लक्षण आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिरोसिस के बाद ये रिवर्स नहीं होता, वापस नॉर्मल सिचुएशन नहीं आती। अल्कोहलिक लिवर के स्टेजेस हैं, जैसे मैंने कहा, हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक सिरोसिस, अल्कोहलिक फैटी लिवर, इसमें अपने अपने लक्षण रहते हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं रहता, रूटीन काम काज में आदमी कभी थक जाता है, कोई फटीग हो गया, लगता है आज ज़्यादा काम कर लिया, बस उतना ही, कभी थोड़ा भूख कम हो गई, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आते। सिम्टम आते लास्ट में, जब लिवर में पानी भरना, जॉन्डिस होना, भूख बिल्कुल खत्म होना, बॉडी एकदम सूख जाती है, पेट निकलता है, पानी निकालना पड़ता है, एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, ये सब चीज़ें होती है। अल्कोहल से न सिर्फ लिवर पे, पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, राइट फ्रॉम माइंड टू नर्व्स, पैनक्रियाज, अल्सर बनना, सेंसेशंस कम होते हैं, विटामिन की डिफिशिएंसी होती है, कैंसर हो सकता है, फूड पाइप का, ओरल कैविटी का, निमोनिया का रिस्क। सो अल्कोहल हैज अ इम्पैक्ट ऑन होल ऑफ बॉडी। सो थैंक यू। ये एक ग्रॉस ओवरव्यू था, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक, इसको लिमिट करना बहुत मुश्किल है 15-20 मिनट्स में। स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, एंड अब हम वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड सी लोगों को क्या क्या डाउट्स हैं which we can clear. Thank you, Dr. Saab. I think it was quite informative. There were lots of questions on hepatitis, on vaccination, and I think you have answered those questions. So, हमारे number of questions definitely कम हो जाते हैं, but there still are certain questions. I will start with one question which it's a detailed question. पंकज जी, आप तब तक कर लीजिए. Let me pull it this. अरे आप म्यूट हैं पंकज जी, you are mute. I will start, Dr. Saab. There's a question from Vijay ji. And as we said, dear friends, we will not be sharing the entire name and the location of the patient for privacy issues. This is one of the suggestions we had got. We respect it. We think it is important to maintain privacy. We will be only mentioning your first name. Please listen to the questions properly. सवालों को ठीक से सुनिए कि ताकि आपको पता चले कि सवाल आप ही का है. My son is 20 years old. 10 years ago, he was diagnosed with grade 2 NAFLD. Was advised medicine
Myosem 400 Evion tablets and regular tests, LFT, KFT, thyroid profile, etc. every 6 months. His weight was 86 kgs. For a couple of years, he took medicine regularly and was advised lifestyle modifications. He went to a city in South in connection with job and did no justice to his health. In every 6 months, tests were with results of SGPT, SGOPT, and alkaline phosphate as more than double value. Bilirubin in all the tests was okay. Latest tests are done 1 year ago. Last year, FibroScan was done at Delhi, and it was told that fatty liver is nearing grade 3. Weight has increased to 115 kgs, which is worrisome. Sedentary lifestyle in lockdown has added to the problem. No medicine since last 2 years is being taken. Lifestyle modification is not being followed. As a parent, I am worried about it. Please advise me. What should I do? My son is not understanding the issue. Issue वही है. He has the question and he has the answer also. Both are there in the same question and answer is also there. This is more of a behavior related problem, because issue is that he knows the problem and he knows the resolution also. इनको पता है कि problem weight gain से है, sedentary lifestyle से है, और इनको ये भी पता है इसका treatment weight loss है, physical activity है, खाना पीना control है, लेकिन still it is not moving forward. So this is more of a behavioral problem. So in his case, as I can feel, 86 से 115 kg हुआ है, मतलब कुछ भी action इन्होंने नहीं लिया है body weight को लेकर. So he is a fit person who can go into cirrhosis of liver over another 10 to 15 years. इनको liver में cirrhosis हो जाए, और जब liver में cirrhosis होता है, डॉक्टर बोलता है कि ये आपका liver third last stage में है, फिर मरीज बहुत भागता है, मगर उस भागने से फायदा नहीं होता. अभी भागने का टाइम ये right now. He has to start running. No, but since he says it is his son, I'll tell you, I'll come to that. It is best that they consult a psychologist. This needs a behavioral therapy. क्योंकि प्रॉब्लम तो पता है. देखिए, वहां पे डॉक्टर का रोल है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है. आपको तो समझ में आ रहा है. You are aware of everything. So you need to either take him to a gym and उसको एक gym instructor के support कर दीजिए कि 2-2 घंटा रोज आएगा, and let him take over, plus to see a dietitian or a nutritionist who makes a diet chart. So step 1 is एक डाइट चार्ट बनवाना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और एक जिम में उसको, अभी तो खैर लॉकडाउन है, कहीं कहीं जिम खोल रहे हैं, कहीं नहीं खोल रहे हैं, बट ये तो 10 years पुरानी प्रॉब्लम है, तब तो लॉकडाउन भी नहीं था. रन तो कर ही सकता है, जॉब तो कर ही सकता है. This needs a behavioral therapy, and he has to start with seeing a dietitian and physical trainer. Online physical trainer भी मिलते हैं. There are so many apps which are, they have a 3 months course, 6 months course. आप घर बैठे भी कर सकते हैं, बट इसमें ज्यादा behavioral और moral support की डॉक्टर साहब, I think क्या इच्छा पहले होनी चाहिए आदमी को खुद अपने आप को फिट करने की. वही है ना, ये इशू है. इनको थोड़ा behavior की दिक्कत है. He needs to go into some behavioral modification. नहीं खुद से हो रहा तो एक psychologist को मिलने में कोई हर्ज नहीं, because ultimately अगर liver cirrhosis में चला गया तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा. फिर आप बड़े से बड़े liver hospital में भी जाएंगे, then they will tell you liver transplant करना है. That is also not a big cost and not. अभी wake up call ले लीजिए and start it right now. We have one more question coming from Ashwani ji. He says, what is the reason for excessive burping? I have taken medicine Nexpro L, but after the completion of course, when I'm not taking it, the problem starts again. देखिए, burping का तो it is more of a stomach related problem, as we were discussing. ज़्यादा आजकल liver related problem we are taking up today, but there is not an issue. Burping is something which means gas is being irritated. अंदर stomach में gas हो रहा है, जो बॉडी निकालना चाहती है. और जो बर्पिंग में जो हम बाहर निकालते हैं, जो एयर बाहर निकालते हैं, 80% ऑफ दैट एयर इज swallowed एयर ओनली. मतलब जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस टाइम पे, swallowing के टाइम पे कुछ एयर भी अंदर जाता है, बिकॉज एयर तो पूरे एटमॉस्फेयर में. जब आप पानी पीते हैं तो केवल पानी पेट में नहीं जाता, उस टाइम पे एयर भी अंदर जाता है. तो 80% ऑफ इट इज swallowed एयर. So somehow it means ज़्यादा burping हो रही है, तो यहाँ को सी पे आपका ज़्यादा swallowing तो नहीं हो रही है. उसमें ट्रीटमेंट ये है कि you have to chew your food properly. अगर रीड खाना बार बार खा रहे हैं तो that takes lot of care. So chew your food, spend time on your food, take let anxiety अगर ज़्यादा हो रही है, stress ज़्यादा हो रहा है, तो we keep on swallowing.
chewing gums, bubble gums, smoking, very important. जब आप smoking करते हैं, again it takes lot of air. So you have to see इसमें से क्या आपके ऊपर apply होता है, and you have to act on that. Next and all, this is not something which is going to आप ज़्यादा देर ले भी नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए. Again, it is more of a lifestyle related issue. कि इसमें से आपके ऊपर क्या, in case of smoking, you have to stop immediately. Otherwise, आप तो smoke ले रहे हैं, तो वो तो गैस कहाँ जाएगा? It has to come out somehow. So that's what you have to do. In fact, मुझे याद, when I was a student, one of our teachers used to tell us कि you need to chew your food at least 16 times before you नहीं, they used to say जितने दांत आपके 32 दांत है तो 32 बार chew करना चाहिए, 32 times. कि मैंने शुरू में भी बताया कि आपका डाइजेशन जो है वो मुंह से chewing से स्टार्ट होता है. Once you start chewing, सिस्टम ऊपर वाले ने ऐसा रखा है, कुछ न्यूरल रिफ्लेक्सेस है, आपने यहाँ chew किया, रिफ्लेक्सेस go to brain and acid secretion and bicarbonate and all that starts already, वो शुरू होता है. जब आपने इसको ही कम किया, वो स्टिमुलस भी कम हो गया, तो डाइजेशन प्रोसेस खराब हो गया. So that's what. एक और सवाल है, मनोज जी का सवाल है. He says, how long can you keep your liver healthy if you have entered first stage of cirrhosis? Can you stop getting liver entering into next stage? If patient is healthy and doing same schedule which has been recommended by doctor, can it save his liver? इसमें सवाल यह है कि सिरोसिस हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है. मैंने जैसे कहा सिरोसिस के कई सारे रीजन. In case it is because of fatty liver, और अगर आपने weight control किया है तो you can still by your exercise and lifestyle modification, बिल्कुल prevent तो नहीं होता, but you can delay. आप इस process को delay कर सकते हैं. If it is because of alcohol, और alcohol आदमी पिए जा रहा है तो इसमें कोई रोक नहीं सकता. उसके बाद कुछ ऑटो इम्यून करके कुछ प्रॉब्लम्स होती है लिवर की, उसका डायग्नोसिस यदि प्रॉपर टाइम पे हो गया तो अगेन यू कैन डिले. सो आंसर इज यू कैन नॉट prevent it, but you can always delay by healthy lifestyle, taking proper medications and following the proper dietary advice. We have one more question from Sanjeev ji. He says, is reflux related to liver burning gases? नहीं, reflux जो हो रहा है ना, reflux is because हमारे stomach में we have, जैसे हम खाना chew करते हैं and once we swallow, तो अंदर एक food pipe होती है जिसको आहार नली बोलते हैं, जिसको esophagus बोलते हैं मेडिकल टर्म में. ईसोफेगस से खाना फिर नीचे स्टमक में जाता है. तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वेल्व होता है. जब हम खाना खाते हैं, दैट वेल्व ओपन्स टू अलाउ द फूड टू गो इनटू स्टमक, देन दैट वेल्व हैज टू क्लोज. रिफ्लक्स में क्या है कि ये वेल्व कभी कभी इनकम्पिटेंट होता है, विच मीन्स ये लूज हो जाता है और स्टमक के कंटेंट्स को वापस रिफ्लक्स मतलब बैक आता है, जो आइडियली नहीं है. बिकॉज स्टमक में खाना जब चर्न होता है, जब वो मसल कंट्रैक्शन होता है, तो खाना चारों डायरेक्शंस में जाता है. उसमें से एक रास्ता तो ड्यूडेनम है, इंटेस्टाइन्स की तरफ है. बट समटाइम्स इफ दिस वेल्व बिकम्स लूज या अंदर को कुछ हर्निया टाइप बनता है, तो दैट रिफ्लक्स कम्स. सो द आंसर इज रिफ्लक्स इज नॉट रिलेटेड टू लिवर, इट इज रिलेटेड टू स्टमक एंड फूड पाइप एंड लोअर स्फिंक्टर करके कुछ होता है, उसके रिलेटेड. There is one more question which has come from Vishal ji. He says, as a diabetic, if it is 60% chance rate, then how frequent we should test for liver, maybe fibroscan or ultrasound? देखिए, एक बात तो to begin with you have to check, because it depends again कि आपका कई चीजों पे डिपेंड करता है. अगर आप डायबिटिक हैं प्लस ओवरवेट है या ओवरवेट नहीं है, आपका शुगर वेल कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, आपको डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन है या नहीं है, डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड का क्या. सो इट इज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स. तो आंसर डिपेंड्स अपॉन ऑन सो मेनी थिंग्स कि आप पतले थिन डायबिटिक हैं या ओबीस वेट ज्यादा वाले डायबिटिक हैं. बट बेस्ट वुड बी कि एक बार टू बिगिन विद एनी टाइम, जैसे आप फिजिशियन से दिखाते होंगे या एंडोक्राइन वालों को दिखाते होंगे, किसी को दिखाते होंगे, एक बार एलएफटी करना और एक बार फाइब्रो स्कैन करना तो जरूरी है. Which is any time whenever you feel कि नहीं, I mean we can go after this current pandemic is over, अभी इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं. उसमें क्या रिपोर्ट आता है और डॉक्टर से कंसल्ट करके, sometimes it comes out कि this is sufficient, आपको दोबारा फाइब्रो स्कैन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, so stop it there. बट इन केस आपके उसमें आता है, फाइब्रो स्कैन में एक्चुअली दो वैल्यूज आते हैं, एक कैप स्कोर करके आता है और एक एलएसएम करके आता है. कैप स्कोर टेल्स अस कि लिवर में फैट की मात्रा कितनी है, एलएसएम बताता है कि लिवर में फाइब्रोसिस स्कारिंग.
सो इनकेस आपका आउट ऑफ रेंज है तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार करना पड़ेगा। अगर आपका ठीक ठीक आ रहा है तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट इनकेस अगर है या नहीं है या आपने टेस्ट भी नहीं किया, still you have to follow this advice which I have given in first part of my presentation. Diet, lifestyle, exercise, sugar control, weight control, ये तो आपको करना ही करना है। You presume आपको है and go for this. Well, there is a question from Sweetie ji. She's asking, is there a way to detox liver? और जो ऑन काउंटर सप्लीमेंट्स मिलते हैं जैसे हिमालय के या किसी के लिव 52, आर दे रियली हेल्पफुल? देखिए, इस सब का कोई रोल नहीं है एज अ मेडिकल, आई विल टेल यू, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। सो जो भी एलोपैथिक हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे आप वैक्सीन देख रहे हैं कोरोना को लेके, वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन का स्ट्रेन भी है, वैक्सीन का टेस्ट भी हो गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट उसको मार्केट में नहीं ला रहा बिकॉज उसका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एलोपैथी। जब तक इसका पूरा शेड्यूल नहीं बनता कि ये वैक्सीन कितने में असर कर रहा है खराब, कितने में अच्छा, कब तक रहती है, सो इट इज अ प्रूवन थेरेपी। सो गवर्नमेंट विल टेल अस आफ्टर 6 months और 3 months फ्रॉम नाउ कि वैक्सीन हैज बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि हाथ में गवर्नमेंट के पास अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है और लोगों को लगाया जा रहा है बट अभी मार्केट में नहीं आया। सो क्वेश्चन यहाँ पे है प्रूवन थेरेपी क्या है? सो माय आंसर इज देयर इज नो प्रूवन थेरेपी। इसका कोई प्रूवन थेरेपी नहीं है। ओटीसी ड्रग्स एंड दिस दैट हिमालयन ड्रग्स, दिस इज नॉट प्रूवन। एलोपैथिक में वी डोंट रिकमेंड। देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन व्हिच इज नोन एज होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एंड वो कितना स्टडी करके उस पे क्या कह सकते हैं, दे वुड बी अ बेटर स्पेशलिस्ट। बट एज अ मेडिकल पर्सन आई वुड कमेंट मच अबाउट इट, बट आई वुड से बी केयरफुल। अगर आपको लेना है प्रॉपर प्रैक्टिशनर से एंड proper assessment के बाद ही go for these things. As allopathic, we don't recommend as such. We have a question from Bittu ji. He says, I am suffering from fatigue. I have constant weakness and I have lost weight without any workout. Is it, do I need to worry? What do you suggest? देखिए, loss of weight is not a good thing. And इसके लिए there is a two extremes. On one extreme is that आपका maybe because of some depression kind, आप माइंड कुछ कारण से हैप्पी नहीं है और आपको खाने में रुचि नहीं है, एपिडेमिक चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, तो कई सारे पेशेंट्स का इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होना तो होता ही है एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेट लॉस। सो दैट इज वन एक्सट्रीम। अनदर एक्सट्रीम इज बॉडी में कोई मेजर बीमारी चल रही है जो आपके सब खाने पीने के और सब प्रॉपर न्यूट्रिशन के बावजूद भी बॉडी को अंदर से वीकन कर रही है। So there are both extremes. So for you it is important consult any physician and एक बार अपना टेस्टिंग करा लीजिए, because just by talking to you it is very difficult to understand कि ये किस तरफ जा रहा है। क्या ये नॉर्मल साइकोलॉजिकल टाइप है, पेंडेमिक फैला हुआ है, so many issues are there, घर से नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, रिलेटिव से नहीं मिल सकते, एंटरटेनमेंट बंद है, सिनेमा हॉल्स बंद है, पार्क्स बंद है, तो डिप्रेशन आना एक नेचुरल सी चीज है, खाना पीना कम है, वेट लॉस होना इज अ नेचुरल थिंग and bimari. So better is to consult a physician and get yourself tested and do not ignore it. There is a question from Rahul. He is asking, is alcohol related fatty liver reversible? Does exercise help? देखिए, मैंने कहा इनिशियल स्टेजेस में रिवर्सिबल रहता है, but once it goes into middle or on the other end of the extreme which is known as NASH, non-alcoholic steatohepatitis, which means liver में अब डैमेज होना शुरू हो गया, तो it is not reversible. So I had answered in the beginning of my talk only, initial stage में reversible है, later stage में reversible नहीं है. So it is better आप जितना जल्दी उस पे एक्ट करें उतना अच्छा। Is it that alcohol should be totally stopped or you can moderate it? और कुछ लोगों का आप कह रहे थे अल्कोहलिक्स होते हैं, देखिए अल्कोहल का ऐसा इशू है कि आई कैन नॉट से कि यू गो एंड टेक अल्कोहल, बिकॉज इन एनी केस इट इज समथिंग व्हिच इज हार्मफुल टू बॉडी। लेकिन वर्ल्ड वाइड लिटरेचर है और स्टडीज हैं कि इट इज सेड कि इन स्मॉल क्वांटिटी यू कैन कंज्यूम, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपका किसके लिए स्मॉल क्वांटिटी क्या है, आपका बॉडी वेट कितना है। आई मीन किसी को लगता है मैं 1 बॉटल पीता हूँ, 3 वाला 1 पे जाता, बोलता डॉक्टर साहब मैं तो बहुत कम पी रहा हूँ, मैं कैसे, मैं तो 3 पीता अब 1 पी रहा हूँ, उसके लिए तो वही स्मॉल क्वांटिटी है। अगर आपको डायबिटीज है
ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एल्डरली है, तो आपके लिए तो स्मॉल क्वांटिटी भी हार्मफुल है। इसलिए इन जनरल आई टेल पीपल टू शुड अवॉइड, क्योंकि एक आदमी को बैठ के जैसे एक टेलर आपका साइज देख के कपड़े बनाता है ना, यू कैन नॉट सिमिलरली पर्सन टू पर्सन इट चेंज, किसके लिए स्मॉल क्या है और आपका क्या बॉडी में चल रहा है। हार्ट का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज है साथ में, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो बेस्ट इज टू अवॉइड। I have a question from Ashwin. He says कि what is the difference between hepatitis A, B and C? While you have explained this, तीनों से मतलब what is the difference? See, difference is on many aspects. Virus A, virus B, virus A and E is a food-borne virus. मतलब ये हमारी बॉडी में contaminated food से आता है। जैसे आप बाहर गए, आपने पानी पूरी खाई या छोले भटूरे खाए, वो प्लेट गंदा था, वो चम्मच गंदा था, आपने वहाँ पानी पिया वो गंदा था, उसमें वायरस के कुछ पार्टिकल्स थे और वो आपके बॉडी में चले गए, जाके लिवर में इन्फेक्शन हो गया। इसको एक्यूट जॉन्डिस बोलते हैं, मतलब आपके खाने के 3-4 दिन या हफ्ते के बाद आपको लगेगा पेशाब पीला हो रहा है, आंखें पीली हो रही है, भूख खत्म हो गई, बुखार आ गया। एक दिन आपने देख लिया, फिर देखा नहीं, उल्टी वगैरह शुरू हो गई, जॉन्डिस पी लिया, आंखों का पीलापन बढ़ता गया। और ये वायरस ए एंड ई को इसको सेल्फ लिमिटिंग बोलते हैं, मींस ये लिवर बाय एंड लार्ज 80 to 90% खुद ही क्लियर करता है। वी हैव टू सपोर्ट, मरीज को कुछ दवाई दी जाती है, 2-3 हफ्ते का, 1-2 हफ्ते का रेस्ट, एंड समटाइम्स कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है अगर वीकनेस ज़्यादा है, अगर उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है या जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रेयरली किसी को ये जो वायरस ए और ई है, लिवर में कई फेलियर टाइप बोलते हैं, लिवर में काफ़ी डैमेज हो सकता है, विच इज़ वेरी रेयर। बट ए एंड ई वायरस जो है ये बाय एंड लार्ज महीना 2 महीना के बाद सेटल हो जाएगा एंड योर बॉडी विल रिकवर एंड देयर वोंट बी एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन लिवर। जो वायरस बी एंड सी है, दिस इज अ नीडल इन्फेक्शन, मींस दिस मींस ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट जहां पे आता है, ये उसके थ्रू आता है। It could also be sexual transmitted. B. दिस इज जस्ट लाइक HIV, जैसे जैसे HIV के जो रूट्स हैं, दिस इज जस्ट लाइक सेम, ऑल द रूट्स वैसे ही हैं। इसका लिवर पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ये लिवर को सिरोसिस में लेके जाता है। इसमें शुरू में जैसे आपने खाना खाया, 3-4 दिन में जॉन्डिस हो गया, हफ्ते, इसमें वैसा नहीं है, ये बॉडी में साइलेंट रहता है जैसे फैटी लिवर है। और इसका मेडिसिन, बी वायरस का मेडिसिन कई साल, 5, 6 years, 7 years चलाना पड़ता है। सी वायरस का मेडिसिन 3 months तक चलता है। बट इलाज है इनका डॉक्टर साहब? हेपेटाइटिस बी रिवर्सिबल? हेपेटाइटिस बी अगेन सी लिवर के सारे प्रॉब्लम्स डिपेंड करते हैं आपको किस स्टेज में पता चला। किस स्टेज में? अगर हेपेटाइटिस बी अभी साल 2 साल पहले हुआ है और आप दवाई ले रहे हैं तो आपका लिवर बचा रहेगा, बहुत कम 1% चांस कि आपका वो सिरोसिस में जाएगा। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी जैसे किसी को 15 साल पहले ब्लड लग गया, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, यूट्रस की सर्जरी हुई, एडमिट हो गए, ब्लड लग गया और उसमें हेपेटाइटिस सी या बी वायरस आ गया, 15-20 years के बाद वो हमारे पास आते हैं अचानक सिरोसिस के साथ। दिस इज नॉट रिवर्सिबल। सो लिवर का सॉरी, आप ये बताएं कौन से टेस्ट रिकमेंडेड है बंदा साल में अपने वो अपना ब्लड टेस्ट? देखिए बेसिक लिवर का एक बेसिक टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, एक अल्ट्रासाउंड। हाँ जी, LFT एंड अल्ट्रासाउंड जो एक बेसिक सा टेस्ट है, बट इसमें अगेन बहुत कुछ नहीं आता। सो अगेन डिपेंड्स कि पर्सन का क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, बॉडी वेट बिल्कुल कंट्रोल में है, खाना पीना सही है, अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसी दवाई नहीं ले रहे हैं जिसपे लिवर का इफेक्ट है, डायबिटिक नहीं है, और अगर आपका LFT अल्ट्रासाउंड ठीक होता है तो देन इट स्टॉप्स देयर, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन LFT में मैंने एक सेकंड, लेकिन अगर आप इफ नो द सिचुएशन इज समबडी, किसी का बॉडी वेट ज्यादा है, अल्कोहल भी पी रहे हैं, डायबिटिक भी है, या कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही हैं जिनका लिवर पे इफेक्ट है, उसमें LFT अल्ट्रासाउंड सफिशिएंट नहीं होता। LFT में चेंजेस तब आते हैं जब आपका लिवर 70 to 80% डैमेज होता है। सो व्हाट हैपेंस मेनी टाइम, पीपल कम टू मी जो 10 साल से 15 साल से अल्कोहल पी रहे हैं और सडनली उनको एक दिन लगता है यार लिवर तो नहीं डैमेज हो गया। क्यों? क्योंकि कोई पड़ोसी जाके एडमिट हो गया बड़े हॉस्पिटल में, बोला जी लिवर खत्म है, वो भी पीते थे, ये भी पीते थे, फिर वो भागते हुए LFT करते हैं, LFT नॉर्मल आता है, बट दिस LFT नॉर्मल आना इज नॉट नॉर्मल फॉर हिम। So this person needs some further tests, which means एक फाइब्रो स्कैन करके, जैसे एक कॉलर ने कुछ टाइम पहले बोला था, फाइब्रो स्कैन करके एक टेस्ट होता है, फिर कुछ लिवर स्कोर्स होते हैं बेस्ड अपॉन LFT में क्या है, CBC में क्या है,
फाइब्रोसिस स्कोर करके, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा आपको. So for somebody who is everything fine, LFT ultrasound may be sufficient, but somebody, so it depends upon क्या है आपका. जैसे मैंने कहा ना, टेलर मेड की जरूरत पड़ती है. But for routine LFT ultrasound आप कर सकते हैं, provided आपका सब कुछ ठीक है. What is the role of triglyceride? What is the role of triglyceride? ट्राइग्लिसराइड है ना, लिपिड प्रोफाइल. सो इट मींस अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बॉडी वेट ज्यादा है, अगर बॉडी वेट ज्यादा भी नहीं है, डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिगड़ा हुआ है, विच मींस कि आपके लिवर, अपने ब्लड में फैट लिपिड का लेवल ज्यादा है. सो अगेन दैट डिपेंड्स, इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है कि आपको फैटी लिवर भी हो रहा होगा. अच्छा, आपका फैट का लेवल मींस लिपिड लेवल बॉडी में ज्यादा है, तो फैटी लिवर का पॉसिबिलिटी फिर से है. अगेन उसके लिए वही अल्ट्रासाउंड एलएफटी एक बेसिक सा टेस्ट होता है. वो कुछ लोगों के लिए सफिशिएंट है, कुछ लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है. We have one more question coming from Shahdab. He says, for few days I am passing dark urine. I have increased my water quantity, but problem is there. Could it be liver infection? What do you suggest I should do? हाँ जी, हाई कलर यूरिन मींस डार्क येलो यूरिन का मींस जॉन्डिस की तरफ वो जा रहा है. अगर पानी वानी काफी पी रहे फिर भी परसिस्ट कर रहा है, तो लिवर का इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी है. So he has to get himself tested. He has to get one LFT done, and it's better that he consults a specialist जो भी इनके nearest available है. अगर body aches हैं, अगर भूख कम हो गई है, if he has some little feeling little feverish, then again it is possible that liver में infection का possibility है. अच्छा, there is one more question by Manoj ji. He is asking, is there any connection between liver and cholesterol? Sorry, I couldn't get liver and कोलेस्ट्रॉल. देखिए, कोलेस्ट्रॉल मैंने कहा ना, लिवर एवरीथिंग, जो भी आप खाना खाते हैं, पानी पी, व्हाटएवर यू टेक, मेडिसिन, वो तो सब लिवर के थ्रू जाता ही जाता है. सो यू कीप इन माइंड. There was a question I thought I should ask it. सब कुछ लिवर के थ्रू रिलेटेड है ही है. मेटाबॉलिज्म सबका लिवर में होता है. कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म लिवर पे डिपेंडेंट है. ट्राइग्लिसराइड, इट्स ऑल इन्वॉल्वड इन लिवर. तो ये तो सही है. और एक चीज डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी आज हमको ज्ञान की बात सुनाई कि आपने कहा कि मस्टर्ड ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. यूजुअली वी ऑल कश्मीरी personally we used to insist on buying mustard oil because one of the reasons was कि mustard oil is an unprocessed oil. क्योंकि देखिए, मैंने 6-7 कंडीशन दिखाई शुरू में कि आपको क्या क्या देखना है. सो इट्स अप टू यू, आप सबको फुलफिल करेंगे, किसी एक को नेग्लेक्ट करेंगे. नहीं, I'm saying it was an eye opener. It was an eye opener. But we Kashmiris are emotional towards the mustard oil rather than any other. बीमार का डब्बा तो बचपन में सबने देखा होगा. I have question from Vijanti ji. She says, I am suffering from acidity for last 20 years. I have endoscopy. I did endoscopy 3 eyes. Everything is fine. I have changed many medicines. Nothing is helping. We don't eat fried or spicy. At present, I take Sompras 40 alternate days. Not helping much. What should I do? इनको एक बार H. pylori infection को, I am not sure whether she has been tested for H. pylori. And in case she has not been tested, तो H. pylori करके एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो स्टोमक के वॉल में रहता है, म्यूकस में, और उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा. इन केस उसका इरेडिकेशन भी हुआ है एंड इनको लॉन्ग टर्म से ये एसिडिटी का दिक्कत है, तो शी हैज टू कंटिन्यू विद हर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसा इनका चल रहा है. इन केस बॉडी वेट ज्यादा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा. और कोई मेडिसिन तो नहीं ऐसा ले रहे हैं बीपी का, शुगर का, जिससे एसिडिटी बढ़ रही है या ऐसा कुछ, वो भी चेक करना पड़ेगा. इन केस एवरीथिंग इज फाइन, तो लास्ट इज दैट शी हैज टू ट्राई टू डिक्रीज दिस मेडिसिन. हफ्ते में 1 या 2 बार ट्राई करके इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा. एक बार फिजिशियन से मिलके इसको लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पे लाके वी हैव टू ट्राई दैट. I have one more question. White says, I have got my test done. I have fatty liver, get my stomach hard every day. मैं क्या करूं? This is Deepak. फैटी लिवर का तो हमने डिस्कस किया है. This is what you have to do. When I think stomach hard is linked to fatty liver, getting a hard stomach. ना, तो उसका कोई लिंक नहीं है. वो कभी-कभी खाने पीने से थोड़ा बॉडी का ये sometimes intestines में swelling आ गई, तो he can take a probiotic वगैरह. मार्केट में दही प्रोबायोटिक होते हैं या कैप्सूल होते हैं, तो एक बार प्रोबायोटिक दिन में 2 बार लेके हफ्ता 10 दिन he can try that.
We have question from Vijay ji. Thanks, sir. Having jaundice at the time of birth for 3 months, will that give rise to fatty liver later in adulthood? No, that is not. No. वो अलग जॉन्डिस होता है, नियोनेटल जॉन्डिस, उसके रीजंस अलग होते हैं, वो फैटी लिवर से जुड़ा नहीं है. फैटी लिवर. Also, if platelets are given in case of dengue, will that give rise to fatty liver? I don't think so. प्लेटलेट्स से कुछ फैटी लिवर पे नहीं पड़ेगा. What precautions should be taken for hepatitis B carrier? So this is a case, I think, probably from a carrier saying what precautions should be taken. See, if you are a hepatitis B carrier, तो definitely आप जब carrier हैं तो you must have taken consultation with a physician or a gastroenterologist or liver specialist. तो carrier तब बोला जाता है जब किसी को hepatitis B का infection है, hepatitis B का वायरस बॉडी में है लेकिन अभी लिवर डैमेज नहीं हुआ है. So hepatitis B 2-3 प्रकार का होता है. एक hepatitis B होता है कि जब आपकी बॉडी में hepatitis B वायरस है और वो वायरस लिवर पे हावी हो गया, लिवर उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और लिवर में स्वेलिंग और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन आ गई. So in that case we have to give tablets and the patient has to come every 3 monthly or 6 monthly for assessment. On the other hand, a carrier is somebody जिसका वायरस तो है लेकिन लिवर सक्षम है, लिवर खुद ही उसको कंट्रोल कर रहा है. उसका रीजन है कि लिवर हेल्दी है और वायरस की क्वांटिटी बहुत कम है. So this is a carrier. तो कैरियर के लिए बेस्ट वही है जो फैटी लिवर का हमने बोला है. डाइट, अल्कोहल वगैरह अवॉइड, ऑयली वगैरह सब नहीं लेना. टेक हेल्दी डाइट, प्लस आपको एवरी 6 मंथली डॉक्टर ने बोला होगा कुछ अल्ट्रासाउंड, LFTs और कुछ टेस्ट करने के लिए, उसको करते रहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और आपके जितने भी पर्सनल आइटम्स हैं, रेजर्स, ब्रशेस एंड टॉवेल्स, ऑल दैट यू डोंट हैव टू शेयर विद अदर पीपल. और आपके घर में जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स जो क्लोज कांटेक्ट आपके साथ घर में रह रहे हैं, उन सबका एक बार हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, HBsAg करके उसको टेस्ट बोलते हैं, उसको टेस्ट करना है. इन केस फैमिली में किसी का आता है तो देन दे हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट. इन केस फैमिली में किसी का वो नहीं आता है, स्टिल दे हैव टू टेक अ वैक्सीन. So what should he do in cases where in social, मतलब जो फैमिली के लिए, but I'm sure this man goes to doctor, goes to hospital, ये office या school या college या movie hall. तो as an individual who is a carrier, I am coming to that only. जो कैरियर वाला है, कैरियर मीन्स उसमें लिवर में अभी ताकत है, बॉडी उसको कंट्रोल करके रखी है. वायरस की क्वांटिटी यूजुअली उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहती है, या अगर रहेगा भी HBV DNA करके एक टेस्ट होता है. सो ही हैज टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एक ही फैमिली में रह सकते हैं, एक ही घर में खा सकते हैं, एक ही किचन यूज कर सकते हैं, एक ही बाथरूम यूज कर सकते हैं. बस पर्सनल आइटम्स आपके अलग रखने हैं और फैमिली मेंबर्स का टेस्ट करना है. एंड गेट योर फैमिली मेंबर्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वायरस. इट इज नॉट, इट इज 200-300 रुपए का एक वैक्सीन है और ये 0, 1 और 6, मतलब आज एक लगेगा, 1 महीने बाद लगेगा, 6 महीने बाद लगेगा, और पूरी फैमिली में प्रोटेक्शन आ जाएगा. अदरवाइज ऑल्सो जिसको वैक्सीन नहीं लगा है, अगर घर में कोई है भी नहीं, आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द सबको लेना चाहिए. बाकी अगर वो ऑफिस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, देयर इज नो इशू. ओनली थिंग इज जो हेपेटाइटिस बी कैरियर है, फूड इंडस्ट्री में जैसे होटल्स वगैरह है, कैफेटेरिया, जहाँ पे चाकू से उसकी उंगली कट सकती है काटते हुए, उसमें उनको काम नहीं करना चाहिए. बाकी वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. डियर व्यूअर्स, वी विल बी एंडिंग दिस प्रोग्राम सून. अगर आपके पास सवाल है तो जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम ले नहीं पाएंगे. 1-2 सवाल है. पंकज जी, आपके पास कोई सवाल है आया हुआ? There is a question they are asking, how is tea affecting liver? टी Does tea affect liver? देखिए, टी का कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से कॉफी कंजम्पशन हैज बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियल फॉर लिवर. बट कॉफी, या कॉफी, It's a black coffee with milk. मैं बता रहा हूँ. So Black or milk? I'll tell you. So if you take 2 to 3 coffee cups a day, it is beneficial for your liver. For somebody who has a fatty liver or somebody who doesn't have, still you can take, but it has to be without sugar, without milk. So this is what Westerners जो US वगैरह में वो black coffee पीते हैं, जो बहुत कड़वी होती है पीने के लिए. The moment we add sugar 3-4 चम्मच and वो milk वगैरह add करते हैं, उसका beneficial effect खत्म हो जाता है. So black coffee has been found, this is based upon studies. It has been proven in studies that yes, it is beneficial. We have one more question saying, given the COVID situation, is FibroScan possible these days in hospitals? हो रहे हैं क्या?
हाँ फाइब्रो स्कैन हो रहे हैं, बट ये कोई ऐसा इमरजेंसी वाला टेस्ट नहीं है कि आपको कल ही जाके करना है. Presuming you have a fatty liver, you start your dietary and exercise. अभी 1-2 महीना वेट कर लीजिए, unless जॉन्डिस है या कुछ ऐसा इशू है कि फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बताया जी करना ही करना है. रूटीन के लिए अभी वेट कीजिए. ऑल्दो फाइब्रो स्कैन हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, बट इमरजेंसी के लिए ऐसा जरूरत नहीं है. यू कैन वेट फॉर सम टाइम. यू स्टार्ट योर डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर लीजिए, अल्कोहल बंद कर लीजिए. यू स्टार्ट दैट एंड आफ्टर 2-3 months you can always do that. कोई इशू. There is one more question from Deepak Pandita. He's saying my wife is asking that she is not able to avoid antacid, Oxid 20, taking every day morning, but in case if she tries to avoid it, but by the end of the day the acidity increases and she has to take antacid on other medicine other than Extronex 100 she is taking daily. I think she's more habitual of taking antacids regularly. Yeah, this is a very, has she done any investigation? Has endoscopy or ultrasound been done? So if it has not been done and she is dependent on this, it's better that she consults a doctor and gets evaluated also, because sometimes this is known as dyspepsia. Dyspepsia मतलब ये जो एसिड जलन होना, इसके कई कारण होते हैं. एक तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूरल अल्सर भी होता है, कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह भी दिक्कत दे सकता है. Sometimes pancreas related problem भी दिक्कत दे सकती है. They all can cause dyspepsia initially. Dyspepsia means खाने के बाद ये जलन खाली पेट. And ये सब evaluation के बाद it will come out कि इनका क्या issue है. As I said in previous case, sometimes we may have to take H. pylori bacteria का treatment लेना पड़ेगा. And then after all this, what comes out is something which we have to then sit with the patient and see. Sometimes it needs behavioral therapy also. As I said, counseling की जरूरत पड़ती है कि इसके बगैर चल जाएगा काम. It is better to consult a doctor for this. Yeah. Doctor साहब, आप you are based out of Columbia Asia, Ghaziabad. आपका OPD timing क्या है? So I'm very sure there will be many people who would like to visit you. So हाँ जी. So मेरा OPD दिन में 11 to, because of this corona pandemic, we have decreased OPD timing सभी 11 से 2 के बीच में रखा है, Monday to Saturday. Then I have a clinic also in Nehru Nagar, Ghaziabad, which is closed because of current situation for last 2-3 months. So is there online consultation also? So how do people? Is there an online link where they can go and book an appointment? Nehru Nagar की या Columbia की? Nehru Nagar तो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद ही रहेगा जब तक पेंडेमिक है. उसके बाद ऑनलाइन लिंक है, उसके थ्रू प्रैक्टो पे मेरा ऐप भी है, डॉक्टर मनीष का. इसमें देयर इज अ प्रैक्टो कंसल्टेशन ऑप्शन, देन देयर इज अ व्हाइट कोट करके एक और है, और इवन गूगल प्ले स्टोर में भी मेरा ऐप है, मेरे नाम से है, उसको डाउनलोड करके वी कैन डू कंसल्टेशन. Perfect. Pankaj ji, we have any questions? I don't think Dr. Saab has replied most of questions. We had some more questions, but since you have already answered them in presentation, मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ. Presentation तो इसलिए हाँ. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. I would also like to tell you that this initiative, you are the 4th in the series. Every program we have touched more than 15,000 people, and we are getting suggestions, we are getting questions. The idea is to help people live a healthy lifestyle, live a healthy life, or since continuing with the celebrations with the grace and blessings of Mata Rupani, we hope we will reach many more people. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Namaskar. Kak sir, Dr. Saab, it was a pleasure meeting you, sir. Thank you for all the advice you have given. I hope जो लोग आपको सुन रहे थे वो उस पर अमल करें. जिनको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है वो आपसे पर्सनली आके मिलें या आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आपसे अपॉइंटमेंट बुक करें, so that you can help in a better way. Thank you, Dr. Saab. नमस्कार, हमारा उर्जू दोरकोट सर. नमस्ते उर्जू दोरकोट.